عید کا دن آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کپڑا دھلنے سے کپڑے سے سارے داغ ختم ہو جاتے ہیں اور کپڑا بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، جب عید کی نماز پڑھ کے مسلمان اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتے ہیں جیسے کپڑا دھلنے سے کپڑا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے مومنوں کے دفتر میں ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا اور اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان کی مغفرت اور انعام، اللہ فرماتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ عید کے اجتماع میں یعنی عید کی نماز میں میرے بندے مجھ سے جو مانگیں گے اس نماز عید کے بعد دعا میں ان کو ضرور عطا کروں گا، جو مانگ لے عطا کروں گا۔ آج کا دن اتنا مبارک دن ہے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو شیاطین کو اللہ تعالیٰ جہنم میں قید کر دیتا ہے، اور جب شیاطین جہنم میں قید ہو جاتے ہیں تو عید کے دن ان کو پھر سے آزادی مل جاتی ہے۔ رمضان شریف کا چاند جیسے ہی ختم ہو کر عید کا چاند نظر آتا ہے تو ان کو آزادی مل جاتی ہے، جہنم سے وہ کھل جاتے ہیں، اور عید کی صبح کو وہ شیطانوں کا جو سب سے بڑا سردار ہوتا ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، اس کے شاگرد اس سے کہتے ہیں آقا تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے آج ابن آدم کو اللہ نے بخش دیا، سب کو معاف کر دیا، اللہ نے سب کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا، نجات کا پروانہ عطا کر دیا۔ تو اس کے شاگرد کہتے ہیں تو روتا کیوں ہے؟ تو ہمیں ڈیوٹی دے کے ہم کیا کریں؟ تو وہ کہتا ہے مہینے بھر عبادت کر کے جتنا مسلمانوں نے ثواب نہیں کمایا اس سے زیادہ ایک دن کے اندر ان سے پاپ کرواؤ، اس سے زیادہ ایک دن کے اندر ان سے گناہ کرواؤ، لے جاؤ کسی کو زنا کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو شراب کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو جوے کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو برائی کے اڈے پر، مہینے بھر تک کے یہ جتنے گناہوں سے محفوظ رہے ان سب کو جو ہے ایک دن کے اندر اتنے گناہ کرواؤ کہ اللہ پاک پھر سے ان سے ناراض ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں شیطان کی یہ ساری کارکردگی کو بیان فرمایا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری قوم جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے، جو فلموں سے بچے رہے، جو داڑیاں منڈانے سے بچے رہے، جو زنا کے اڈوں پر جانے سے بچے رہے، جو شراب کے اڈوں پر جانے سے بچے رہے، اب ان کا پلان کیا ہوگا؟ جلدی سے عید کی نماز ادا کریں، گھر جائیں اور لوگوں سے ملیں، اور اس کے بعد پھر دوست و احباب کے ساتھ فلموں میں جائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا اتنا عظیم تہوار عید کا دن، جس دن اللہ مسلمان کے پاپی سے پاپی بندے کو بھی بخش دیتا ہے، مومن اگر ہے اس کے دل میں ذرہ برابر رائی کا دانہ ہے تو اللہ اس کے پاپ نہیں دیکھتا، عید کے مبارک دن کے صدقے اللہ اس کے سارے جرائم کو بخش دیتا ہے۔ لیکن جس بندے کو خدا نے اپنی رحمت سے بخش دیا اس بندے کا حال کیا ہے؟ اب وہ فلم میں جانے کا پلان کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے تہوار پر باضابطہ طور پر فلم خانوں پہ بورڈ لگتے ہیں کہ یہ ہاؤس فل ہو گیا ہے، اب یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ میں صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی عیسائیوں کے تہوار پر بھی فلم خانے ہاؤس فل ہوتے ہیں؟ کیا کبھی کافروں کے تہوار پر بھی فلم خانے ہاؤس فل ہوتے ہیں؟ مسلمانوں تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جس مذہب کے رسول نے آنکھوں سے بد نظری کرنے پر فرمایا کہ جو لوگ نگاہوں سے بد نظری کریں گے، اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان محرمات کو اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مرتے وقت پہلے ان کا ایمان چھینا جائے گا، اس کے بعد ان کو موت آئے گی۔ حیرت ہے وہ قومیں، وہ لوگ جن کے یہاں رسول کی آمد کا کوئی تصور نہیں، حیرت ہے جن کے یہاں قرآن جیسی کتاب نہیں، ان قوموں کے تہوار پر فلم خانے ہاؤس فل نہیں ہوتے، ان قوموں کے تہوار پر زنا کے اڈوں پر پہرے نہیں بٹھائے جاتے، اور مسلمانوں حیرت ہے۔ اور پھر کیا وقت آ گیا ہے، ہمارے نوجوان ایسے نکلیں گے گناہوں کی طرف،
ईद का दिन है, न सैर और तफरीह के लिए कोई ममानियत है, न खुशी के लिए कोई ममानियत है, लेकिन मुसलमानों हम खुशी करें, नाजायज काम न करें, इसलिए कि तुम पर ऐसी आफतें, ऐसी बलाएं टूट पड़ी है कि अगर तुम उससे निपटना भी चाहो तो नहीं निपट सकते। मेरा अल्लाह फरमाता है वमा अस्हाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुश्किलें और मुसीबतें आती है वो तुम्हारे हाथ की कमाई है। हमारा हाल ये है, जब तक के कमाए हुए पूरा पैसा मेरी कौम का नौजवान खत्म नहीं कर देता, उस वक्त तक वो ड्यूटी पर नहीं जाता और गुनाहों के अड्डों को आबाद करता रहता है। खुदारा अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करो, अपने आप की फिक्र करो, अपनी औलाद की फिक्र करो। आप बताएं, अगर इस तरीके से फजूल खर्ची तुम करते रहे तो तुम अपने बच्चों की तालीम पर कब तवज्जो दोगे? लोग कहते हैं कि मुसलमानों के पास पैसे नहीं है इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हो, तुम्हारे बच्चे जाहिल और गवार रहते हैं, तो गुर्बत तुम्हारे घर से नहीं निकलती। अगर एक शख्स अपने बच्चे को पढ़ाए, उसको तालीम हासिल करवाए, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं 10 साल अगर एक बंदा मेहनत करे अपने बच्चे को पढ़ाने पर, इंशाअल्लाह 10 साल के बाद उसकी गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा होगा तो वो बच्चा जो है अपने माँ बाप की गुर्बत के दूर करने का जरिया बन जाएगा। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम कहते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं पढ़ाने के लिए। जिस कौम के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, वो कौम का करोड़ों रुपया तो फिल्म खानों में जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो ज़िना के अड्डों पे जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो गुनाहों के अड्डों पे जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो शराब के ऊपर खर्च हो रहा है। आप कैसे कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है? अल्लाह ने हमें बहुत दिया है। अगर हम अपनी अल्लाह की दी हुई दौलत को सही राह में खर्च करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तरक्की कर सकते हैं। आज के दिन, ईद के दिन, ये पैगाम है कि अगर हमें आधी रोटी खाना पड़े तो खाएं, हमें एक दिन में एक टाइम का खाना खाना पड़े तो एक टाइम का खाना खाएं, 2 टाइम का खाना तर्क कर दें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। खास तौर पे स्कूल कॉलेजेस अपने बच्चों को पढ़ा करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। जब तक के कौम मुस्लिम तालीम हासिल नहीं करेगी, ये कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम दुश्मन अनासिर ने यह मंसूबा बना लिया है, इनको जाहिल रखो, जाहिल रखेंगे तो ये गरीब रहेंगे, और जब गरीब रहेंगे तो यही बैतुल खला साफ करेंगे। वो कौम जिसने इस मुल्क में 1000 साल तक हुकूमत की है, अब उस कौम से बैतुल खला साफ करवाने का मंसूबा है। और क्यों? ताकि तुमको जाहिल रखा जाए, अनपढ़ रखा जाए। खुदा के लिए अपने शौक पे कंट्रोल करो, खुदा के लिए फजूल खर्ची पे कंट्रोल करो, अपने बच्चों को पढ़ाने का अज़्म करो। अगर आज की इस महफिल में मेरा कोई भाई ये तय कर लेता है कि मुझे एक वक्त का खाना पड़े तो मैं खाऊंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को आला डिग्री दिलाऊंगा। लोग कहते हैं नौकरी तो हमें मिलती नहीं, हमारे साथ तो तासुब किया जाता है, फिर हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं? याद रखें, अपने बच्चों को ऐसी क्वालिटी दे दें कि दुनिया मजबूर हो जाए, तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं ढूंढना पड़े, नौकरियां तुम्हारे बच्चों को खुद तलाश करें। हमारा ये मिजाज होना चाहिए। और फिर हम नौकरी के लिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को डिग्री इसलिए दिलवाते हैं ताकि हमारे बच्चों के अंदर क्वालिटी पैदा हो, हमारे बच्चों के अंदर शऊर पैदा हो, हमारे बच्चों के अंदर संजीदगी पैदा हो। मुसलमान फजूल खर्ची से परहेज करे और मुसलमान जो है अपनी दौलत को जाय करने से परहेज करे। अल्लाह तुम्हें बहुत देता है लेकिन तुम उसकी कदर नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, जैसा कभी आपने हमसे बड़े आलिम मुहद्दिस आजम मुफक्किर आजम यानी सैयद अमीनुल कादरी साहब के ज़बान से बयानात को समाअत कर लिए, मैं आपका मेहज़बान कारी तस्बीह आलम। आप अगर हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि हर दिन आपको इसी तरह का एक अच्छा पैगाम मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और हमारे नजदीक और आपके नजदीक से रमजान शरीफ रुखसत होने वाला है, यानी हमसे जुदा होने वाला है। और ये महीना बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाली है। इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इबादत में मशगूल रहना चाहिए। तो देखिए, जैसे रमजान शरीफ गुजरेगा यानी ईद का चांद नजर आएगा तो रमजान शरीफ चला जाएगा, हमसे जुदा हो जाएगा, यानी अलविदा हो जाएगा। तो क्या आपको मालूम है कि ईद के दिन हम खुशियां मनाते हैं,
इजहार करते हैं, नए कपड़ा पहनते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, आपस में इत्तेफाक करके ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हैं, तो आपको मालूम है ना कि अगर आपके खानदान से या फिर आपके गांव मोहल्ले से या फिर आपका कोई अपना आदमी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, यानी इंतकाल हो जाता है, कब्र में लेटा हुआ आता है ना, तो ईद के दिन वो क्यों रोता है? क्या हमें ईद के दिन अपने मरहुमा की कब्रों पर जाना चाहिए और फातिहा देना चाहिए? क्यों लोग रोते हैं? हम यूं मनाते हैं ना कि ईद कब आएगा, हम उसका इंतजार करते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन उसी वक्त मरहुमा यानी मुर्दे लोग ना, वो कहते हैं कि जिंदगी में कभी ईद ना आए। वो रोते हैं, किस वजह से रोते हैं, उनको क्यों तकलीफ होता है? काश वो चाहते हैं कि हम भी ईद मनाते, वो तो दुनिया में नहीं आ सकते हैं। आपको मालूम है कि शैतान ईद में यानी रमजान में कैद हो जाता है, और जो मुर्दे लोग होते हैं, जो इंतकाल हो जाते हैं ना, उनको जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। तो जरा सोचे कि इसलिए रोते हैं कि काश हम भी दुनिया में रहते तो सारे लोग से बैठते और ईद का खुशियां मनाते। तो अल्लाह अकबर, ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन सैयद आमिरुल कादरी साहब ने आपको दे दिया कि मुर्दे क्यों रोते हैं, किस वजह से रोते हैं, वो क्यों ये कहते हैं कि जिंदगी में कभी ईद ना आए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मिल गया, वीडियो को शेयर कर दे। टाइम हमें बताया नहीं गया है, मौत का एक वक्त मुतय्यन है। आपको 35 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी, आपको 18 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी, आपको 25 और 27 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी। अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने वालियों, घूंघट से घबराने वालियों, पर्दों से घबराने वालियों, काफिर और मुशरिकों के बहकावे में आकर शैतान ने तुम्हें अगवा कर लिया है। शैतान के जाल में फंसने वाली मेरी बहनों, जब तुम्हें तुम्हारी कब्र में रख दिया जाएगा, उस वक्त चारों तरफ से कब्र तुम्हें दबाएगी। कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाएगी। कब वो भयानक जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा सख्त है, दुनिया की आग भी दिन में 36 मरतबा जहन्नम की आग से पनाह मांगती है। वो आग तुम्हारी कब्र में दहकाई जाएगी। झटका लगने पर दिन भर बेचैन रहती हो, ये ट्यूब लगा लो, वो मरहम लगा लो, वो पट्टी लगा लो। अरे छोटे से अंगार के झटका तुम्हें इतना तकलीफ पहुंचाता है, जब बेपर्दगी की वजह से तुम्हारी पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। बोलो, क्या कोई शौहर मदद के लिए आएगा, कोई मां मदद के लिए आएगी, कोई भाई मदद के लिए आएगा? नहीं नहीं, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। ये बेवफा दुनिया ने किसके साथ वफा की है तो तुम्हारे और मेरे साथ वफा करेंगे लोग? नहीं नहीं, कोई मददगार नहीं है। अगर वहां कब्र में भी कोई मदद करने वाला है तो एक जात है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। ये जो तुमने नौसत इख्तियार रखी है, पसंद पसंद पसंद, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, ये मोहब्बत नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये दरिंदगी है, ये वहशत है, ये झूठापन है, ये मकर फरेब है। मैं जानता हूं ऐसे लड़कों को भी जिन्होंने मेरे पास आकर के रोया है, तौबा भी की है, उन्हें एहसास भी है। वो कहते हैं कि हमने लड़कियों से मोहब्बत के नाम पे उनकी आबरू लूटी, उनकी आबरू लूटी। लड़कियां कहीं की नहीं रहती है। मेरी बहनों, आपको अपनी आबरू बचाना है, आपको अपनी इज्जत बचाना है। हया का ज़ेवर आपके लिए बहुत कीमती है। आप जानती हैं, अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी लड़कियां थी, ऐसी ऐसी लड़कियां जिन्होंने आबरू बचाने के लिए जान की परवाह नहीं, जिन्होंने आबरू बचाने के लिए जान की परवाह नहीं की। आइए, तारीख में एक लड़की का जिक्र मिलता है। एक ऐसी लड़की बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील थी, हुस्न बहुत था। एक मर्तबा एक बादशाह अपनी सवारी पर बैठ करके जा रहा था। लड़की आ रही थी। खूबसूरत लड़की को उस बादशाह ने देखा और देखने के बाद अपने गुलामों से कहा, ये खूबसूरत लड़की मेरे महल में होनी चाहिए। लोगों ने उस लड़की को हीले बहाने से बादशाह के महल में पहुंचा दिया, इसलिए कि वो बादशाह था, उसके पास इख्तिदार था, उसके पास दौलत थी, उसके पास सब कुछ था, उसके पास ताकत थी, कुव्वत थी, सब था। जब लड़की उसके सामने पेश की गई, गरीब थी वो लड़की, उसके पास ताकत न थी, उसके पास कुव्वत न थी, उसके बाप के पास इख्तिदार न था। मजबूर होकर के जब उस लड़की को बादशाह के सामने पेश किया गया, बादशाह ने कहा, तुम जानती हो कि मैं बादशाह हूं? लड़की ने सर झुका कर कहा, जानती हूं। कहा कि अपना जिस्म मेरे हवाले कर दो। लड़की ने कहा, यह जिस्म मेरे अल्लाह की अमानत है,
मैं तेरे हवाले कैसे कर सकती हूं। अल्लाह ने ये जिस्म दिया है। मेरी बहनों याद रखो, जब तुम अपने जिस्म को गुनाहों से बचा लोगी, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को बीमारियों से दुनिया में बचाएगा और आखिरत में जहन्नम की आग से बचाएगा। और अगर तुमने अपने जिस्म को गुनाहों से नहीं बचाया तो दुनिया में तुम्हारा जिस्म बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार होगा और आखिरत में अल्लाह के अजाब का शिकार होगा। तैयार रहना। ये चेहरे पे झुर्रियां बहुत जल्दी पड़ती है। हर उरूज को जवाल है, हर उरूज को जवाल है। तुम्हारे हुस्न को कब तक उरूज रहेगा? बड़े बड़े हसीनाओं के हुस्न खाक में मिल गए, तुम्हारा हुस्न कब तक बाकी रहेगा? सूरज पूरे गुरूर के साथ निकलता है और जब पूरे गुरूर के साथ सर पे चढ़ता है उसको भी जवाल आता है। फूल और कलियां पूरे गुरूर के साथ गुलिस्ता में खिलती है और पूरे गुलिस्ता को चैलेंज करती है अपने हुस्न की वजह से, लेकिन जब वो दरख्त से या पौधे से तोड़ दिया जाता है तो फिर वो फूल भी मुरझा जाते हैं, या तो किसी के कदमों में पड़े होते हैं या तो रास्तों में पड़े होते हैं। हर उरूज को जवाल है। चांद बढ़ता भी है, महे कामिल होकर घटता भी है। अरे जब चांद के हुस्न को जवाल, सूरज के हुस्न को जवाल, गुलों के हुस्न को जवाल, शफक के हुस्न को जवाल, उफक के हुस्न को जवाल, तो तुम्हारा हुस्न कब तक बाकी रहेगा? हुस्न पर मत इतराओ। जवानी 2 दिन की है, हुस्न 2 दिन का है, लेकिन याद रखना अगर हमेशा हसीन रहना है, एक नुस्खा बता देता हूं, हमेशा हसीन रहोगी, अल्लाह से डरती रहना, गुनाह से बचती रहना। जब तक चांद सूरज निकलते डूबते रहेंगे तुम्हारा हुस्न बाकी रहेगा। हत्ता के कब्र में चली जाओगी तो भी हुस्न बाकी रहेगा। अल्लाह की खशियत की बुनियाद पर लोगों की जिस्म को तो कब्र के कीड़े खा जाते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं कब्र में भी उनका हुस्न बाकी रहता है, महशर में भी वो हसीन होंगे। मेरे आका ने यहां तक फरमाया, जो जिनके दिल खशियत इलाही के गंजीने हैं और जो वुजू करके अपने आप को मुज़य्यन करते हैं, क़यामत के दिन उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। मेरी बहनों, हुस्न तो ये है ना, तकवा तो तकवे का हुस्न है, अल्लाह की खशियत का हुस्न है, इसके रसूल का हुस्न है। उस लड़की ने बड़ी मासूमियत और सादगी से कहा कि ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, मैं तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसने कहा, अगर तू मेरे हवाले नहीं करेगी तो फिर अपनी जान खोने के लिए तैयार हो जा। तुझे पता है मैं तुझे क्या कर सकता हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास कुव्वत है। लड़की ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तू मेरे जिस्म से खेलना ही चाहता है। मर्द की सबसे बड़ी हवस और तमन्ना यही होती है, दुनिया परस्त मर्द की, कि वो औरत के जिस्म को खिलौना बनाए। औरत बड़ी मजलूम वाक़ई हुई हर तरह से। कभी औरत को जुए में हारा गया, कभी औरत को बेचा गया, कभी औरत के जिस्म को लूटा गया, उसका इस्तेहसाल किया गया, औरत को खिलौना बनाया गया। इज्जत दी है तो एक मजहब ने, जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं, एक मजहब ने, लेकिन अफसोस जिसने इज्जत दी उसको लोग ने बदनाम कर दिया, जिसने इज्जत दी उसके खिलाफ लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा किया। हाय अफसोस, जिसको हवस जिन लोगों ने हवस का निशाना बनाया औरत को, उन लोगों ने ही इस्लाम के हवाले से तुम्हारे दिलों में शुकों को शुबात डाल दिए। नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है, जिस्म अल्लाह की अमानत है, मैं तेरे सुपुर्द कैसे कर दूं? कहा कि अगर तू नहीं करेगी तो अंजाम भयानक होगा। लड़की ने देखा अब बचने की कोई सूरत नहीं, मैं सिनफे नाजुक हूं, मैं इससे बचाव नहीं कर सकती, ताकत कुव्वत इसके पास है, तो क्या सोचा, चलो जान दे देंगे मगर आबरू बचा लेंगे। लड़की ने कहा, एक काम करो कि मुझे पेशाब की हाजत है और इस हाजत में जिस्म को तुम्हारे हवाले करना नामुनासिब है, ये बादशाह की बेअदबी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी हाजत से फारिग हो जाऊं। उसने कहा, ठीक है, मेरे छत पर बाला खाना है, ऊपर जो है और उसी पर जो है वो, वहां जाकर तुम हाजत कर सकती हो। लड़की पहुंची और पहुंचने के बाद उसने देखा महल बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा महल था। लड़की ने सोचा छलांग लगाऊंगी तो क्या होगा, फिर सोचा चलो अल्लाह के नाम पे छलांग लगा देते, मर गए तो मर गए, टूट गए तो टूट गए, फूट गए तो फूट गए। इसलिए कि टूटने पे जिल्लत नहीं मिलेगी,
फूटने पे जिल्लत नहीं मिलेगी, मरने पे जिल्लत नहीं मिलेगी, आबरू का सौदा करने पे जिल्लत मिलेगी। लोग लंगड़ी कहेंगे, बेआबरू तो नहीं कहेंगे। लोग अंधी कहेंगे, बेआबरू तो नहीं कहेंगे। लोग मुर्दा कहेंगे, बेआबरू तो नहीं कहेंगे। अल्लाह अकबर। फिर उसने क्या किया? उसने अपने पीर और मुर्शिद हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद का नाम लेकर उस ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। और जब छलांग लगाई तो क्या देखा कि पीर और मुर्शिद का दामन उसको बचाने के लिए काम आ गया। वो तो शायद नक्शबंद की करामत थी, लेकिन उस औरत की इस्तिकामत क्या थी, उस औरत का ज़ौक़ क्या था। यहां पर अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए, चूंकि गुरूब आफ्ताब का वक्त है और बयान का एंड और इख्तिताम है, बातें बहुत करनी होती है लेकिन वक्त के अंदर भी गुंजाइश होनी चाहिए। और आज तो हमारा बहुत खुशनसीब है कि आज आपने डायरेक्ट खिताब उस्ताद मोहतरम, कायदे मोहतरम, आलमी खतीब इनकलाब हजरत किबला अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला से सुनना है, जिनसे हम सुनकर मुस्तफीज होते हैं, जिनसे हम लोग इस्तिफादा करते हैं, जिनसे हम लोग सीखते हैं। आज उस खतीब से आपने सुनना है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को एंड पे करना चाहता हूं, इख्तिताम पे। मेरी बहन, बस मैंने आपसे इतना ही कहना है, नाजायज चीजों से मेकअप छोड़ दो, नाजायज चीजों से मेकअप छोड़ दो, ऐसे काम छोड़ दो जिससे आप की पर मर्दों की नजर पड़े। ऐसे काम मत करो जिसकी वजह से मर्द आपको तके। पर्दे में रहो, छुप करके रहो, अपनी आबरू की हिफाजत करो, अपनी आबरू को तहफ्फुज दो। उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी दे सके, आबरू को तहफ्फुज दो। जाते जाते ये बात भी कह दूं, कभी ऐसा भी होता है कि आप गरीब है, पैसों का लालच देकर लोग आपकी आबरू खरीदना चाहते हैं। याद रखना, आबरू से बड़ी कोई दौलत नहीं है। बेआबरू होकर अगर तुम करोड़पति हो तो तुम दौलतमंद नहीं हो, और बाहया होकर तुम गरीब हो तो तुम दौलतमंद हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, जैसा कभी आपने हमसे बड़े आलिम मुहद्दिस आज़म मुफक्किर आज़म यानी सैयद अमीनुल कादरी साहब के ज़बान से बनात को समात के लिए मैं आपका मेज़बान कारी तस्बीह आलम। आप अगर हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए होंगे तो आपसे गुजारिश से रिक्वेस्ट अपील है कि आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर दिन इसी तरह का एक अच्छा पैगाम मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, भी आपने तो हमसे बहुत बड़े आलिम के ज़बान से बनात को समात कर चुके हैं, तो मैं आपसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ, और नहीं मैं आपको वक्त लेना चाहता हूँ, और नहीं मैं आपको वक्त को बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए कि आपने हमसे बहुत बड़े आलिम के ज़बान से बनात को समात कर चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो यार, अपने कौम के मुसलमान भाइयों के पास इस पैगाम को शेयर करना जरूरी है। और ये वीडियो खास करके हमारे खवातीन यानी औरतों के लिए, जब औरतें रोटियां पकाती है ना, जब वो रोटी पकाते हैं, जब वो रोटी को फुलाते भी हैं, तो अगर किसी औरत को, अब वो औरत हो या फिर लड़की हो, अगर उनको रोटी पकाने में हाथ जल जाए तो उसकी निशानी क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी हकीकत क्या है, 99 लोग खवातीन यानी औरतें नहीं जानते हैं। लेकिन मुझे यकीन है, आप पर भरोसा करता हूं और इंशाअल्लाह ताला करते आ रहा हूं और क़यामत तक करता रहूंगा कि अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक बयान को सुने होंगे तो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने आपको बहुत ही बड़ी पैगाम दे दी है कि अगर कोई खवातीन रोटी पका रहा हो गेहूं का अपने घरों में, और उसको पकाने के दौरान, अब वो कोई ऐसा तो चीज होता है ना, जैसे कि लोग आजकल के फैशन के लोग हो गए हैं, तो बहुत सारा ऐसा भी मशीनें निकल गई है जो कि मशीन के जरिए से रोटी पक जाती है। और जो पहले के लोग थे जो कि आग जलाकर चूल्हा पे पकाते थे, तो जैसे चूल्हा में डर होता है, ये मतलब जलने के लिए, लेकिन जो मजबूती होती है, जो अच्छा होता है, जो बेहतरीन क्वालिटी का होता है, वो आपका तवा वाला होता है और आग वाला होता है। लेकिन आजकल के लोग तो बहुत ही मशीन के जरिए से, केमिकल के जरिए से रोटी पका देते हैं, तो खा लेते हैं। तो इसको क्या क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसके हवाले से ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन सैयद अमीनुल कादरी साहब ने आपको दे दिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।